Gurutam. Okay, guys, so welcome to our physics session. So we will start with our today's topic. So in the last session, we have done for resistance. We have seen many types of resistance calculation and all. Right, guys? Yes, sir. Okay, so we are going to see more today. So we have already done what is current. We have done the Ohm's law. We have how to find the series resistance, how to find the parallel resistance, total resistance values भी हमने देख लिया है. हमने ammeter कैसे काम करता है वो देखा, voltmeter का भी देखा. Now we are moving ahead. Okay, so just give me a second. Give me a moment, guys. Okay. So we have seen these parts. Okay. Fine, guys. So I'm giving you one small question which already I'm done with you in the last session. Okay, so giving you again to do it right now. Fine. Okay. Can you see the question here, guys? Yes, sir. Okay. So please try to do this. 2.5, sir. 2.5. Okay. Amishi, what about you? Just a minute. Huh? Just a minute, sir. Okay. So 2.5. Okay. और 1.6, sir. हाँ 1.6 सेकंड का 1.6. ठीक है, ठीक है, सॉल्व कीजिए. आदित्य, व्हाट अबाउट योर आंसर? टोटल 2.51, sir. Resistance is equals to. ओके, ठीक है. करंट Currents are 1.6. ओके, फाइन. आशीष, व्हाट अबाउट यू? 2.5 है सर. ठीक है, ओके, ठीक है गाइस. सो अमीशी, आपका करंट निकल गया इसमें, No, sir. तो निकालिए. टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, वोल्टेज मिल गया है. सो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड फाइंड आउट. So 1.4. 1.4. 4. हाँ ठीक है, approximately that's okay, fine, no problem. So just give me a second, guys. Okay, fine. So we will move further. Okay, so just give me a second. Okay. We are moving ahead into the next topic, that is power. What we have? Power. Power.
Okay. So what is power? Anybody knows about it? Anybody knows about what is the power? Guys, anybody knows about the power? Yes, sir. Tell me. The rate of doing work is called power. Okay. So the power is what? The rate of doing work is known as power. But in the electrical, Sir, what? consumption of energy, sir. Huh? Consumption of energy. The rate of consumption of energy is called power. Yes, you can say that. And in electricity chapter, we can say the electrical work per unit time. The power is, we can say the electrical power. What we can say? Give me a second. Yes, we can say electrical power is electrical work done, electrical work done per unit time. So आप note down कीजिए guys. Power is equals to work done Time. upon, Time. W by T. yes. What will be the SI unit? So SI unit of power Watt. is Joule per second. watt. Watt, sir. Yes. 1 watt is equals to 1 1 joule. Volt into per ampere. second. एम्पियर होता है ना सर? नहीं. करंट थोड़ी है. Okay. Note it down fast. Done, sir. Note हो गया? 1 second, sir. अमिशी नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Okay. Shall we proceed? आगे बढ़े? नितीश? Yes, sir. Okay. मैं आगे बढ़ रहा हूं. ध्यान देंगे सभी लोग. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, आसान सा चीज है, बहुत टफ नहीं है, बट आई एम गिविंग यू अगेन. I told you the power is equals to work done upon time. Correct? Yes, sir. मैं थोड़ा सा पुराने जो हम लोगों ने क्लासेस किए थे उसमें से मैं कुछ आप लोग को फॉर्मूला याद दिला देता हूं. ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को V is equals to W upon Q. Amishi, do you remember this? Amishi? Yes, sir. Yes, sir. All potential difference is equals to work done upon charge, right? उसके बाद एक तो ये फॉर्मूला पढ़ाया था. ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये पढ़ाया था, राइट? उसके बाद पढ़ाया है Q इज इक्वल्स टू NE, ये पढ़ाया है. और एक फॉर्मूला और पढ़ाया है V इज इक्वल्स टू IR. किसी को इन फॉर्मूला में कोई डाउट है तो मुझे अभी बताए. कोई No, डाउट? sir. अच्छा, मैं क्यों रिमाइंड करा रहा हूं वापस से, क्योंकि अब इन फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है. क्या करना है हमें? फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन यूज करना है. ध्यान दीजिए, वर्क डन वाला फॉर्मूला कहाँ है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन वी हैव, राइट? सो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? वर्क डन इज इक्वल्स टू V into Q. कैन आई राइट इट दैट? अमिशी, कैन आई राइट लाइक दिस? मल्टीप्लाई करा दिया. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. So can I write down here W is equals to V times Q को हम लिख सकते हैं I into T. Can I write that? Yes, sir.
So I can write I into T. So एक फॉर्मूला बन गया पावर का, ध्यान दीजिए। वर्क डन की जगह मैं लिख रहा हूं VIT upon T. So it will give me how much? Only VI. TT हम कैंसिल कर दिए, तो पावर का एक फॉर्मूला मिला मुझे, क्या? VI। ध्यान दीजिएगा, ये सब पावर के फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं। पहला पावर का फॉर्मूला मिला W अपॉन T, दूसरा फॉर्मूला मिला P is equals to VI, potential difference into current will give me what? It will give me power. किसी को डाउट है कि कैसे आया ये फॉर्मूला? No, sir. Amishi, do you have doubt how we get this formula here? No, sir. इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पावर फॉर्मूला सभी को याद रहता है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, करंट दे देगा, हो सकता है रेसिस्टेंस दे देगा, और वहां से हमें कैलकुलेट करना रहेगा कि पावर क्या होगा। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला पावर का मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान देंगे गाइस। अभी अभी हमने पढ़ा है V is equals to IR। Yes, sir. तो क्या मैं इस VI के जगह पे मैं पावर इज इक्वल्स टू VI के जगह पे मैं लिख सकता हूं IR टाइम्स I। तो पावर Yes, क्या sir. मिल जाएगा? पावर मिलेगा हमें I square. स्क्वायर टाइम्स R। Yes, sir. तो देखिए तीसरा फॉर्मूला भी पावर का मैंने लिखा है, तो पावर के टोटल 3 फॉर्मूला हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T, दूसरा फॉर्मूला VI, और तीसरा फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझे अभी बताए। अमीशी, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. तो ये 3 फॉर्मूला पावर के लिए याद रखिएगा, और मैंने सबका रिलेशन भी बनाकर दिखाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? Yes, sir. Yes. Sir. ओके। और एक चौथा फॉर्मूला और है यहाँ पे, जो कि ध्यान में नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा। अभी पहले आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से पूरा। 3 फॉर्मूला कैसे कैसे मैंने बनाया। पावर का फॉर्मूला हमें मालूम हो गया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमने ये जो पहले हमने पढ़ा था, इनकी हेल्प से हमने अपने नए फॉर्मूले डिराइव कर लिए। जल्दी से नोट कीजिए। ओके गाइस, so all of you noted this part? Yes, sir. Okay, एक फॉर्मूला और है जो कि मैं बता देता हूं अभी। Give me a second. So another formula we have, just now we have studied I square times R, right? अभी देखिए हमने पढ़ा था V up is equals to IR। तो यहां से हम लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। तो अब मैं यहाँ पे I पे जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो इट विल बिकम हाउ मच? V अपॉन R का होल स्क्वायर टाइम्स R। सो P विल बिकम V स्क्वायर टाइम्स अपॉन R स्क्वायर। सो ये कैंसल हो जाएगा। सो बचेगा कितना? V स्क्वायर बाय R। एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आसान है चैप्टर, नो नीड टू वरी। प्लीज नोट कर लीजिए गाइस। कर लिए। अमिशी डन? Sir, I square Yes, RT sir. नहीं हो सकता है सर। क्या? I square RT नहीं हो सकता है। वो हीट है, हीट, गर्मी। I स्क्वायर RT गर्मी है, हीट। अभी पावर पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सब लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. कोई बच तो नहीं Yes, गया? sir. एक मिनट। आशीष डन? Yes, sir. नीतीश डन? Yes, sir. सोनल? सोनल डन? Yes, sir. आदित्य यस सर। डन हो गया ये वाला? यस सर। अच्छी बात है, ठीक है। अमिशी डन? अमिशी? ओके फाइन, ठीक है।
अब देखिए ये सब फॉर्मूलाज तो भाई मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब इस पे काम कौन करेगा, तो काम करोगे आप लोग। फाइन, चलें क्वेश्चंस पे। बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं ये सब, मार्क्स लाने वाले प्रॉब्लम्स हैं गाइस, ठीक है। इसमें से मार्क्स बहुत आसानी से आता है और क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ से। रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो नीतीश, क्या आप प्रॉब्लम पढ़ सकते हो? सर पहला मुझको समझ में नहीं आया सर। कौन समझ में नहीं आया? ये सर फॉर्मूला समझ में नहीं आया। कौन यहाँ? यस सर। इसमें क्या समझ नहीं आया बताइए, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? सर दूसरा में क्या पुटअप किए सर? दूसरा में, अच्छा। मैं समझा देता हूँ, नो इश्यू। तो पहले बताना चाहिए ना, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू पावर। यस सर। अच्छा, तो वर्क के जगह पे ध्यान दीजिए, मैंने ये पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यस सर। ये पढ़ा रखा है। यहाँ sir. से अगर आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन पे आ जाएगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद मैंने ये लिख दिया वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये चार्ज देखिए, चार्ज को हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। यस सर। तो यहाँ से Q हम निकाल सकते हैं I इंटू टी, कर सकते हैं। यस सर। तो मैंने Q के जगह पे क्या लिख दिया, IT लिख दिया। कैन यू सी? यस सर। तो ये V अपने पोजीशन पे आ गया, Q के जगह पे IT लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू VIT। यस सर। तो यही मैंने वर्क डन यहाँ पर लिख दिया है VIT। अब यहाँ पर VIT लिखा तो ये T था, ये T था, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? VI बचेगा। यस सर। तो दैट्स व्हाई VI इज कमिंग। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब VI में देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमने पढ़ रखा है वोल्टेज इक्वल्स टू IR, पढ़ रखा है ना ये। यस सर। तो इस वोल्टेज की जगह पे हम लिख देंगे IR टाइम्स I, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, I मींस I स्क्वायर टाइम्स R। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो तीन फॉर्मूला मिल गया, पावर इज इक्वल्स टू W बाई T पहला, दूसरा पावर इज इक्वल्स टू VI, और तीसरा I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर टाइम्स R मिल गया। यस सर। और उसके बाद मैंने बताया फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वापस से। सो फोर्थ फॉर्मूला में मैंने बता रखा है, ये यहां तक तो आ चुके थे हम, करेक्ट। और हम लिख सकते हैं I को V अपॉन R। सो V अपॉन R मींस V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए मैंने V स्क्वायर R स्क्वायर लिखा, यहाँ पे एक R था जिसके कारण ये कैंसिल हो गया, सो V स्क्वायर अपॉन R बच गया हमारे पास। तो 4 फॉर्मूलाज मिल गए गाइस। यस सर। क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, Nitish, please read the problem. What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to the source of 220 volt? Okay, मैं रीड करता हूँ। Question is asking what is the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to the source of 220 volt. So सबसे पहले मेरा रूल ये कहता है गिवन डेटा नोट डाउन करो, राइट। सो गिवन डेटा में अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, आई कैन सी दैट द बल्ब ऑफ हाउ मच वॉट पावर, क्या दे रखा है, पावर इज इक्वल्स टू 40 वॉट दे रखा है, राइट। दूसरा क्या दे रखा है जी, वोल्टेज। सो हाउ मच वोल्टेज इज गिवन टू अस, 220 वोल्ट। पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहा है, करंट निकालना है, ये पूछ रहा है गाइस, राइट। अभी हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू VI, क्या पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी? यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। सो वी कैन राइट 40 अपॉन 220। सो कोई भी मुझे बताएगा कि ये डिवाइड करके कितना आएगा? सर 2/11 सर। तो सॉल्व कीजिए डेसिमल्स में, पॉइंट्स में। यस सर। 5.5. So 40 divided by 220, 40 divided by 220 is
कितना बताया? 5.5। सॉरी, ओके, एक मैंने या 5.5 नहीं, 40 sir. 40/220 है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो 5 पॉइंट कैसे आ जाएगा? सर 1/5.5। 0.181। हाँ, ये आंसर है। ओके, ठीक है, सो 0.181 एम्पियर। अमीशी, डू यू क्लियर हाउ टू सॉल्व? वैल्यूज पे नहीं चाहिए, यस सर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। तो समझ में आया। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फास्ट फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन गाइस। ये इस तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम्स रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, सीधा फॉर्मूला पुट करो आंसर निकलेगा। तो इन सब में मार्क्स लूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। गॉट इट? जल्दी से नोट करो, आज कुछ हमें और भी देखना है, बहुत सारी चीजें। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज द यूनिट फॉर करंट। नोट हो गया ये वाला? यस सर। ओके गाइस, मैं सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूं, जरा ध्यान देंगे कैसे करेंगे हम इसे। माय गॉड, ओके, I'm taking the second problem, guys. Okay, so anybody can read the problem? Sonal, can you read the problem? An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. What is what When when it is operated and on 110 volt, the power consumed will be? अब देखिए यहाँ लिखा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है कोई, वो 220 वोल्ट पर 100 चल रहा था, 100 वाट उसमें कंज्यूम हो रहा था पावर, राइट? अब जब हम उसमें 110 वोल्ट देंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हमको निकालना है। क्या करना है हमें? हमें निकालना ये है कि 50 जब हम 110 वोल्ट देंगे तो उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए, ये बल्ब है, ये भी यहाँ बल्ब है, राइट? तो Yes, वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है? डाउन हो रहा है। वोल्टेज डाउन हो रहा है। अच्छा, बल्ब दोनों ही केस में क्या चीज कॉमन है? कोई चीज ऐसी है जो कांस्टेंट होगी? क्या Yes. चीज क्या कांस्टेंट होगा? करंट कांस्टेंट होगा क्या? yes sir. Yes. करंट कैसे कांस्टेंट हो सकता है? करंट तो वोल्टेज पे खुद डिपेंड करता नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 100 वाट का है सर। तो 100 वाट का है, तो मेरा कहना ये है कि जितना वोल्टेज देंगे उसके बेसिस पे डिपेंड करता है करंट, राइट? तो वोल्टेज अप एंड डाउन होगा, तो करंट भी तो अप एंड डाउन होता है, जिस कारण बल्ब डिम जलता है। Yes sir. तो बल्ब में ऐसा क्या चीज है जो कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदल सकती? अमीशी, कैन यू टेल मी, क्या चीज है बल्ब में ऐसा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वर्क डन, पावर, Power. current or resistance. What thing we have that Resistance sir. constant? Resistance never change. जो रेसिस्टेंस इस बल्ब में यहाँ पर है, यहाँ पे वोल्टेज चेंज भी करोगे तो क्या रेसिस्टेंस उस बल्ब का बदल जाएगा? No No. sir. अमीशी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हियर? यस सर, जो बल्ब आप यूज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज हो सकता है, उस बल्ब का पावर चेंज हो सकता है, लेकिन सेम बल्ब अगर मैं लेकर कहीं भी जाऊंगा तो उसका रेसिस्टेंस वही रहेगा, नहीं बदलेगा। दैट इज द कांस्टेंट पार्ट, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्यों रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब? क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला, देखिए यहाँ फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है,
हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। हाँ, पढ़ाई किया है ना। तो अभी देखो, अभी हम इस पे लिखते हैं, दो केसेस हैं। एक केस में हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 है, राइट। पावर कितना है, तो 100 वाट है, पहला केस, राइट, फर्स्ट केस। दूसरे सेकंड केस में हमारे पास वोल्टेज कितना है, तो 110 वोल्ट। पावर हमें क्या करना है, पावर निकालना है, राइट। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हमने पढ़ाई की है। तो हम यहाँ से R निकाल लेंगे, तो R निकल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। तो उसको हम लिख सकते हैं 220 टाइम्स 220 by how much, 100. So it will be cancel. So resistance will come how much, some 22 times 22, right, जो भी आएगा हमें कोई, हम इसको as it is इसमें लिख देंगे। यहाँ पे हमने पढ़ रखा है v स्क्वायर अपॉन r, पावर का ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, अब वोल्टेज हो गया 110, और रेसिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे बल्ब कोई भी हो यहाँ पे, राइट। सो रेसिस्टेंस की जगह पे हम लिख सकते हैं 22 टाइम्स 22। ये कितनी बार में जाएगा, आई थिंक 5 में चला जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो 5, इसको 25 वाट। 5, सो पावर इज कमिंग हाउ मच, 25 वाट। मतलब क्या कि अगर जो बल्ब 220 पे 100 वाट कंज्यूम कर रहा था, वो 110 वोल्ट देंगे तो कितना वाट कंज्यूम करेगा, 25 वाट कंज्यूम करेगा। सोनल समझ में आया? नहीं सर। क्या इसमें समझ नहीं आया, ये बताइए मुझे। सर इसमें हम रेजिस्टेंस क्यों निकाले? क्योंकि अगर बल्ब आप सेम बल्ब में कोई भी वोल्टेज दो, ठीक है, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं चेंज होता है। वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, पावर कंजम्पशन चेंज हो सकता है, वर्क डन चेंज हो सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस तो उसमें लगा है ना। रेसिस्टेंस तो उसकी फिक्स वैल्यू होती है किसी भी चीज की, राइट। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज देखिए, वोल्टेज यहाँ चेंज भी हो रहा है, you can see the voltage is changing, but वोल्टेज चेंज होने के कारण रेसिस्टेंस तो सेम ही आएगा। तो जो रेसिस्टेंस यहाँ निकला वही रेसिस्टेंस हमने यहाँ यूज कर दिया, तो इसमें देखिए पावर कैसे चेंज हो गया। इज इट क्लियर नाउ? यस। कोई दिक्कत? नो सर। तो प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। या टेल मी। डन सर। अच्छा डन, ओके। और लोगों का, अमिशी डन, ओके। नीतीश डन, यस सर। ओके फाइन फाइन, ठीक है। आदित्य का भी हो गया है, सोनल आपका हो गया, बस एक सेकंड सर। ओके। और कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज आप धड़ 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 बोल रहे हैं, रॉन्ग होगा आंसर, दैट इज नहीं। पहले कॉन्सेप्ट लगाइए फिर बोलिए, ठीक है। शैल वी मूव? सर अच्छा, एक चीज, अच्छा देखिए, मैं ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करवाता हूँ, मैं एक ही फॉर्मूला से बहुत सारी चीजें बनवाता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे उस कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अभी देखिए, अभी हमने सब कुछ पढ़ा, पावर पढ़ा, सब ये पढ़ा। अभी हमें निकालना है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या निकालना है अभी हमें? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घर में हम लोग बिजली यूज करते हैं, यस सर। यूनिट बिल आता है, बिजली बिल। यस सर। यस सर आया था कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो बिजली बिल जो आता है, वो कैसे बिजली बिल हम पे करेंगे, कितना यूनिट आएगा, वो सब अब हमें निकालना है। अंडरस्टैंड? यस तो अब हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, KWH। KWH, राइट। commercial unit of electrical
एनर्जी, जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि KWH, ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, मैं इसको पहले समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। आई विल एक्सप्लेन टू यू, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए, अभी अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पढ़ाया है? Yes, sir. अच्छा, आप लोग को बता दूं कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी के इक्वल भी होता है। वर्क डन और एनर्जी इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। कैन आई राइट लाइक दिस? सो यहां से हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। प्लीज आप लोग मेरे साथ नोट कर लीजिए गाइस। ये अभी एनर्जी पावर इनटू टाइम कैसे हो गया, ये मालूम चला? Yes, sir. नीतीश, कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा है कि वर्क डन को ही तो एनर्जी भी बोलते हैं, राइट? Yes, तो sir. हम एनर्जी अपॉन टाइम जो पावर के बराबर है, तो यहां से हमने एनर्जी निकाल लिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द पावर इनटू टाइम। नीतीश, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ओके, आशीष, No, sir. अमीशी, अमीशी, Amishi, can you hear me? Sir. Yeah, do you have any doubt in this? No, sir. आदित्य, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि क्या कर रहा हूं मैं। मैंने अभी भी बताया कि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट? पावर जो था, मैं यहां लिख देता हूं पहले, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब देखिए गाइस, यहां पर मैंने बता दिया है कि ये पावर इनटू टाइम होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? Yes, sir. What? वॉट वॉट होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड्स। तो अगर मैं ये देखूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वॉट इनटू सेकंड हो जाएगा यूनिट में। लेकिन हमको तो पढ़ना है किलोवाट आवर। क्या पढ़ना है हमको? किलोवाट आवर पढ़ना है, राइट? तो अभी देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर अगर हम देखें तो वॉट टाइम्स सेकंड, क्या है ये लिखा हुआ? वॉट टाइम्स सेकंड है लिखा हुआ। तो वॉट टाइम्स सेकंड मींस इट इज व्हाट, इट इज रिटन एज अ जूल। क्या लिखा हुआ है ये? जूल। क्या आपको मालूम है? मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड, बताया था। तो अगर मैं 1 वॉट टाइम्स सेकंड कर दूं तो ये मुझे कितना देगा? ये मुझे देगा 1 जूल देगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से अगर मैं देखूं तो इट इज कमिंग हाउ मच? इट इज कमिंग 1 जूल। एनी प्रॉब्लम? नो। मतलब वॉट टाइम्स सेकंड कर देंगे तो वो कितना हमको दे देगा? इट विल गिव अस 1 जूल। अमीशी, डू यू एनी प्रॉब्लम इन दिस? अमीशी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, अब देखिए मैं एक रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। रिलेशनशिप है किलोवाट आवर एंड जूल। किसके बीच में रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं? किलोवाट आवर एंड जूल। अभी देखिए, अभी हमने पढ़ाई करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में आता है, ये बात समझ ली हमने, राइट? और एनर्जी के लिए जो है किलोवाट आवर से जूल का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो गाइस प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैं लिख सकता हूं 1 किलोवाट आवर को, कैन आई राइट इट डाउन हियर, 1 किलोवाट times 1 hour? Can I write that? Yes, sir.
So 1 kilowatt का मतलब क्या हो गया? Can I write it down? 1000 watts. Can I write? Yes, और sir. one hour का मतलब कितना हो गया? 1 hour को मैं लिख 36 सकता हूँ seconds. 3600 जी। seconds. Yes, sir. तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 1000 times 3600 watt times second बन जाएगा ये। तो अगर मैं देखूं ये कितना है, 3 0 इधर, और तो मैं इसको लिख सकता पाँच हूँ है। 3.6 into 10 the power 6 watt times second। और Yes, sir. watt times second कितना होता है? जूल। It is Joule, sir. coming joule. So remember that 1 kilowatt hour is how much? 1 kilowatt hour is 3 into 3.6 into 10 the power 6 joules. जरा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा आप लोग एक मिनट, इसी को नहीं, एक मिनट, सॉरी वेट, गिव मी अ सेकंड। आप लोगों ने ये नोट कर लिया था, राइट? Yes, sir. Amishi, have you noted this? So, yes, sir. तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम नोट कर लिया था। उसके बाद आप नोट करो कि एनर्जी को पावर इनटू टाइम मींस यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वॉट टाइम सेकंड। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 1 जूल हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, राइट? तो लिखिए इसको, जरा नोट कीजिए। मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट हम कंजम्पशन निकालते हैं, लेकिन उसके लिए ये सब जरूरी है याद समझना। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। कैन यू हियर मी? ये नोट हो गया सभी का? Yes, sir. अमीशी, आदित्य, आशीष, सबका हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। ओके आप लोग उसके बाद ये रिलेशनशिप नोट कीजिए जरा प्लीज, एंड आई विल बैक इन 30 सेकेंड्स। ये रिलेशनशिप पूरा नोट करके रखिए, मैं वापस आ रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड। Yes, sir. Done, sir. ओके गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ठीक है, नोट हो गया ये वाला? Yes, sir. अच्छी बात है, सबका हो गया? Yes, sir. अच्छी बात, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बड़े आसान रहेंगे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मार्क्स आ जाना है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. ओके अमिशी, चेंज करूं मैं पेज? Yes, sir. ठीक है गाइस, मैं चेंज कर रहा हूं। आई एम अपलोडिंग द क्वेश्चन एंड अमिशी प्लीज रीड द प्रॉब्लम। Yes, sir. A radio, a set of 60 watt runs for 50 hours. How much electric energy is consumed? ओके अब ध्यान दीजिए कि गिवन डेटा क्या है हमारे पास। हमारे पास डेटा जो है, गिवन डेटा that we have the power is given in which form? Watt के फॉर्म। wait listen me, टाइम जो है वो किस में दे रखा है? 50 आवर्स में दे रखा है, राइट गाइस? Yes, किस में sir. दे रखा है? आवर्स में। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमको जूल में ही निकालना पड़ेगा। किस में निकालना पड़ेगा? जूल में, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में निकालने से बेटर ये है कि हम इसको किलोवाट आवर में निकाले। मैं क्यों रीजन में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इसको किस में निकालेंगे? किलोवाट आवर में निकालेंगे। इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी जस्ट कि क्यों निकालेंगे किलोवाट आवर में। तो Sir, सबसे hour में sir, क्योंकि आवर में 50 आवर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, वो रीजन नहीं है। मैं बताऊंगा कि क्यों हम किलोवाट आवर में ही निकालेंगे इसको, ठीक Yes, है? रीजन उसके पीछे मैं बताता हूँ, अभी जस्ट बता रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड। तो इसको आवर में है उससे कोई मतलब नहीं कि आवर में है कि क्या है, ये इसका मतलब ये नहीं है, इसके पीछे दूसरा रीजन है। ओके, तो जूल में निकाल सकते हैं, बट याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आप किलोवाट आवर में आंसर देंगे। अगर उसने लिख दिया है कि नहीं जूल में चाहिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब तो जूल में निकालना पड़ेगा, मेंशन नहीं है
तब हम किलोवाट आवर में ही निकालेंगे। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. तो पावर 60 वॉट है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये? 0.06 किलोवाट हो जाएगा। Yes, sir. अगर एनर्जी का फॉर्मूला, नीतीश बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? Sir, Watt into second, sir. TT होता है सर। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है। सो पावर जो है वो हमारे पास किलोवाट में है, तो हम लिख देते हैं 0.6 किलोवाट, और ये हो जाएगा 50 जो है वो आवर्स, यहाँ Power into किलोवाट। सो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 30। 30 हो जाएगा? यस Kilowatt. 3, sir. 3 होगा, 30 कैसे हो जाएगा? Yes, sir. 3 hours. It will 3 become किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा ये? 3 किलोवाट आवर। तो यहाँ तक प्लीज आप लोग नोट कर लो पहले, फिर मैं चीज बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है, मुझे साइड से बताना है आपको। जल्दी से आप नोट कर लो। सर यहाँ आवर को सेकंड में चेंज नहीं करते। मैं अभी आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। नोट कर लिया गाइस सभी ने? Yes, sir. अमीशी डन? Yes, sir. ओके, अब ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में ऐड कर देता है कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 7 रुपीज, फाइंड द टोटल कॉस्ट। फाइंड व्हाट? फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो अगर यहां 1 यूनिट बोल दिया, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, मैंने क्या इस्तेमाल किया है? 1 यूनिट। तो बिजली बिल में आप जब चेक करोगे तो 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट ऑफ मीटर, मीटर कौन सा? इलेक्ट्रिक मीटर जो घर में लगा रहता है, सभी के देखा है ना सभी ने? Yes, sir. 1 यूनिट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक मीटर is nothing but 1 kilowatt hour. 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के। मतलब अगर 1 यूनिट बोल दिया तो 1 यूनिट का मतलब कि 1 किलोवाट आवर जो है उतना है। अब देखिए मेरे पास कितना आया पावर कंजम्पशन, कितना एनर्जी कंज्यूम किया मैंने? 3 किलोवाट। तो मतलब अगर मैं बिजली बिल देखूंगा तो उसमें मैंने कितना कंज्यूम किया? कितना कंज्यूम हो गया? 21. कंज्यूमशन हो गया 3 यूनिट का कंजम्पशन हो गया। कितने यूनिट का कंजम्पशन हो गया? 3 यूनिट का। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 21। तो टोटल कॉस्ट 21. विल बिकम हियर 3 times 7 रुपीज, सो इट विल बिकम 21 रुपीज की बिजली मैंने खर्च कर दी। अब समझ में आया किलोवाट आवर में ही क्यों मैंने बोला निकालने के लिए? बिजली बहुत सस्ता है सर। हाँ बिजली तो बहुत सस्ता है भैया, एक्स्ट्रा चार्ज और जो टैक्सेस कौन पे करेगा? तो सस्ता है। टैक्स होता है। तो और क्या, टैक्स अलग से लगता नहीं है? जब बिजली बिल उठा के देखिए, समझ में नहीं आता कि बिजली बिल में। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा बाद में कभी। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब क्लियर हुआ कि किलोवाट आवर मैं क्यों बोल रहा था करने के लिए? Yes, sir. तो यूनिट कभी कभी दे देता है कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज दिस मच, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो उस केस में हमें किलोवाट आवर में निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अमिशी, डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड आदित्य क्लियर है? यस सर। नीतीश क्लियर है? नीतीश Yes, sir. क्लियर है? कुछ डाउट है तो बताइए। No, sir. ओके, सोनल, आशीष? नो सर। ओके ठीक है, चलिए हम पेज चेंज करें। शैल आई चेंज द पेज? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया था किलोवाट आवर में करने के लिए।
अब देखिए हम इसको कैसे दूसरे चीजों में और कन्वर्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ये तो ठीक है, हाँ ये यूज कर सकते हैं। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक क्वेश्चन और है जो आप लोग बनाओ, क्योंकि इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ओके गाइस, Sonal, can you read the problem? Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. For 30 minutes guys। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले तो हम गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या डेटा गिवन है, नीतीश बताइए। करंट गिवन है 5 एम्पियर, उसके बाद रेसिस्टेंस गिवन है 2 ohms एंड टाइम गिवन है कितना? 30 मिनट। तो 30 मिनट है तो इसको हम क्या सेकंड में कन्वर्ट कर लें क्या? 900। सो 900 30 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1800 सेकंड। Amishi, do you clear with this the given data? Yes, sir. Okay, now listen me guys. They are asking energy. What they are asking? Energy. We know very well energy is nothing but power into time. हमने पढ़ा है ना पावर इंटू टाइम, राइट? अब देखिए इस पावर को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो मेरे पास करंट है, मेरे पास रेजिस्टेंस। तो अब मैं जाऊंगा सीधा फॉर्मूला पे जो मैंने बताया था। मेरे पास ये इतने सारे फॉर्मूला हैं। कौन सा फॉर्मूला ले अमीशी इसमें से? I square। अमीशी, Yes, sir. which formula shall I take it for power? So P is equal to I square into R. राइट, हम आई स्क्वायर आर लेंगे। क्यों? क्योंकि आई और आर की वैल्यू दे रखी है तो वही लेंगे। So we know very well the power is I square R into time के लिए T। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 into 2 sorry 5 का स्क्वायर into 2 into seconds। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अभी देखिए, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे तो ये हमें कुछ वॉट में आंसर देगा। तो जरा सा हम निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा 25 into 2 into 1800 और ये हो जाएगा वॉट टाइम्स सेकंड। तो गाइस कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? यस सर, 90,000 सर। क्या एक काम करें क्या, हम इसको ना हम किलोवाट आवर में ही चलेंगे। एक काम करते हैं, हम ना इसको आवर में बदलने के लिए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम अलग अलग, एक मिनट, मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है तो हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखिए अब मैं लिख देता हूं यहाँ से पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस जो है वो 2 है। सो इट गिव्स मी 25 इंटू 2 दैट गिव्स मी 50 वॉट। तो पावर जो मिल गया हमको, कितना मिल गया? 50 वॉट। इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05 किलोवाट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, अब सीधा यहाँ से हम, अच्छा इसको आवर में कन्वर्ट कर ले टाइम को, तो हाफ एन आवर लिख सकते हैं हम। यस। तो एनर्जी को हम लिख देते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सो पावर भी किलोवाट में मिल चुका है मेरे पास, 0.05 किलोवाट। टाइम जो है वो हाफ एन आवर हो गया। तो कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा? 0.025 किलोवाट आवर। 0.025, गुड। 0.025 kilowatt hour. This is the answer.
Amishi, do you clear? Amishi, Yes, sir. हमने क्यों चेंज किया स्ट्रेटजी? क्योंकि हम देख रहे थे जब सेकंड में गया ना तो बहुत कंफ्यूजन होने लगा, बड़ी नंबर्स वैल्यूज आने लगी, तो बेटर है हम छोटे वैल्यूज में काम कर लें। तो हमने पावर अलग से किलोवाट में निकाल लिया और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये किलोवाट आवर हमें आंसर दे दिया। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. सोनल, कुछ डाउट है किसी को? मुझे बताइए अभी। No, sir. शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर खत्म कीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर रहे हैं। यस, आई गॉट इट, द न्यू प्रॉब्लम हियर। ओके गाइस, आई एम अपलोडिंग इट। मैं मूव कर रहा हूं पेज। ओके, सो कोई प्रॉब्लम रीड कर, अमीशी कैन रीड द प्रॉब्लम प्लीज। Yes, sir. A refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt. पर किलोवाट आवर मींस पर यूनिट दे दिया, ऑलरेडी बता दिया, राइट? अब गाइस देखिए इसमें क्या क्या Yes, sir. गिवन डेटा है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो पावर रेटिंग मतलब पावर ऑलरेडी बता दिया, तो पावर कितना है हमारे पास? 350 वॉट। कितने देर के लिए यूज होता है? टाइम क्या है? 10 आवर्स अ डे, 10 आवर्स पर डे। अब निकालना है कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए, राइट? तो हम एक Yes, काम sir. करते हैं, पर डे का पहले एनर्जी निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना खर्च हुआ, राइट? सो Yes. पावर Yes, sir. को हम पहले कन्वर्ट कर लें किलोवाट आवर में, राइट? सॉरी किलोवाट में। तो अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, सो ये किलोवाट हो जाएगा। सो हम इसको कैंसल कर दें, सो आंसर आ गया 0.35 किलोवाट। किसी को प्रॉब्लम? No, sir. तो हम लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे, एक दिन के लिए निकाल लेते हैं। तो एक दिन के लिए क्या लिखेंगे? P इंटू टी सीधा, क्योंकि ये टाइम जो है वो 1 डे के लिए है, 10 आवर्स, राइट? Yes, हम sir. लिख सकते हैं 0.35 किलोवाट, और एक दिन में कितने टाइम यूज हो रहा है? 10 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 3.5 किलोवाट आवर। किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. सो अमीशी, डू यू हैव प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. तो एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज, क्या क्वेश्चन पूछा है? 30 डेज के लिए। सो 30 डेज के लिए 1 डे के लिए 3.5 किलोवाट आवर था, सो हम 30 डेज के लिए सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा गाइस? 3 या 90 105 और 105 से 105, गुड, 105। So we are getting 105 kilowatt hour, right? Now cost for 1 kilowatt hour is given me as how much? 3.40 rupees, right? So Yes. total cost will become here how much? 3.40 times 357 357. So we are getting here 357. 357 rupees. Amishi, can you clear how to do this? Yes, sir. कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे अभी बताएं। Hello. यस, बताइए। Yeah, anybody has doubt? आशीष, नीतीश? No, sir. ओके, सोनल कोई डाउट? No, sir. अमीशी आपको? No, sir. ठीक है, चलिए, ओके फाइन, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। कर लिए सर। ओके, shall we proceed in this? Yes, sir. Amishi, change करे पेज। Yes, sir.
Okay, giving you the problem, guys. Okay, guys. So, आशीष, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? Yes, sir. प्लीज रीड कीजिए. A bulb is rated 200 volt, 100 watt. What is its resistance? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electric energy consumed? Calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. अब इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछ दिया. मैं बताता हूँ टोटल कितने क्वेश्चन पूछ दिया इसमें. 3 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन की रेसिस्टेंस क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन की 4 एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन की कॉस्ट कितना होगा. राइट. अच्छा, रेटेड का मतलब मालूम है कि इसका मतलब क्या हुआ? ये उसका रेट नहीं. अमीशी, डू यू नो व्हाट इज द रेटेड? No, sir. अच्छा, होता क्या है बता रहा हूं मैं. कंपनियां क्या करती हैं कि जब कोई आइटम बनाते हैं तो कंपनी उसकी टेस्टिंग करती है. क्या करती है? टेस्टिंग करती है. टेस्टिंग करते वक्त उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिलता है. क्या मिलता है? रिजल्ट्स. उन रिजल्ट्स को वो उस आइटम के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि हमें ये रिजल्ट मिला. मतलब कि 200 वोल्ट अगर उसकी सप्लाई जाएगी तो कितना पावर कंज्यूम होगा? 100 वॉट का पावर कंज्यूम होगा. उस बल्ब के ऊपर लिख दिया उन्होंने. ठीक है, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ आता है. रेटेड का मतलब होता है कि बल्ब के ऊपर लिख देते हैं वो लोग टेस्ट करने के बाद कि इतना वोल्ट सप्लाई जाएगा तो इसमें 100 वॉट का पावर कंजम्पशन होगा. इसका मतलब होता है रेटेड. मतलब उन्होंने ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग करी, जो रेटिंग आई वो रेटिंग लिख दिया. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं. आपने सुना होगा कि मोटरसाइकिल्स जो या कार जो मार्केट में बिकती हैं तो लिखते हैं ना वो लोग रेटेड 25 किलोमीटर पर लीटर, या मोटरसाइकिल में लिखते हैं ना 50 किलोमीटर पर लीटर. अमीशी कैसे? हाँ, नहीं देखे सर. KMPL, आप उनका कैटलॉग पढ़ोगे उसमें दिखेगा. अच्छा. KMPL बोलता है ना कि ये बाइक इतने 1 लीटर में इतना किलोमीटर चल सकती है. तो हाँ, माइलेज दिखता है. माइलेज. हाँ, माइलेज. अमीशी, हैव यू सीन इट? Yes, sir. सुना भी होगा. तो माइलेज जो है वो एक्चुअल थोड़ी ना कि ऑलवेज उतना ही देगा. उन्होंने जब टेस्टिंग किया तो उतना मिला तो उन्होंने बताया कि इतना हो सकता है. इन रियलिटी इट कैन बी डिफर. राइट. ओके, तो वो तो रेटेड का मतलब था. अब हम आते हैं क्वेश्चंस में अपने. तो सिंपल सी बात है. क्वेश्चन में पहला है रेसिस्टेंस निकालना. क्या है? रेसिस्टेंस निकालना. तो हमको मालूम है पावर पावर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? V स्क्वायर अपॉन R पढ़े. तो यहां से अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P लिख सकते हैं. सो V स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर अपॉन P इज 100. So it will become how much? 200 times 200 upon 100. So it's cancel. So it gives me how much? 400. So it gives me 400 ohms. 400 ohms. कोई दिक्कत है पहले वाले में किसी को? No, sir. अच्छा, अमीशी, do you have any problem in this? No, sir. अच्छा, दूसरे केस में कहता है 5 such bulbs burn for how many hours? 4 hours. 4. एक बल्ब कितना कंज्यूम करेगा अगर वो मिल जाए हमें 4 आवर्स में, तो हम 5 बल्ब कितना कंज्यूम करेगा निकाल सकते हैं. Yes, sir. तो हम लोग Yes, सबसे sir. पहले निकालेंगे एनर्जी कंजम्पशन ऑफ वन बल्ब. तो वन बल्ब का सिंपल सी बात है कि अगर एनर्जी कंजम्पशन मतलब पावर इनटू टाइम. राइट. तो पावर Yes, sir. कितना Yes, दिया sir. हुआ है? पावर इज 100. 100. टाइम कितना है जी? 4 आवर्स. 4 hours. तो अब सिंपल सी बात है, पावर को किलोवाट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम. Yes, sir. ये 100 अपॉन 1000 किलोवाट, और टाइम तो ऑलरेडी आवर्स में है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे. तो कितना हो
जाएगा ये 0.4. ये कैंसल हो गया, सो 0.4 किलोवाट आवर। एक तो एक बल्ब का निकल गया, राइट। तो Yes, sir. सिमिलरली अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन ऑफ हाउ मेनी 5 बल्ब्स। तो 5 बल्ब के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, Yes, sir. 2 unit. तो इट विल गिव मी हाउ मच, 2 kilowatt hour. 2 kilowatt hour. Amishi, do you getting this? Yes, sir. So now we need to calculate the cost. So cost of per unit, देखिए यहाँ लिख दिया इन्होंने per unit, मतलब ये 2 किलोवाट मतलब क्या हो गया 2 unit kilowatt, 1 kilowatt is equals to 1 unit बोलते हैं, right guys? So cost of 1 unit is coming how much, 4.60 rupees. So total cost कितना हो जाएगा, 9.20. so total cost will become here 2 times 4.60. So it will be approximately give me a second. 9.20. Yes, 9.20. 9.20 rupees. Please note कर लीजिए guys fast. तो देखिए ये सवाल बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप बना ले जाओगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अमीशी, डू यू गेट इट? Yes, sir. ओके, ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग बच रहा है बस, और कुछ नहीं बच रहा। तो एक क्लास और इसमें होगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन इस संडे को आप लोगों को मैं फिजिक्स का क्वेश्चंस, मतलब फिजिक्स का टेस्ट होगा। ओके गाइस, जैसे मैथ्स का टेस्ट हुआ था वैसे ही मैं फिजिक्स का एक टेस्ट लूंगा, राइट। सो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जितने भी जो भी मैंने पढ़ाया है प्लीज फोकस ऑन इट। आज तक जो पढ़ाया है वही टेस्ट में आएगा, डोंट वरी। ओके अमीशी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अभी जो आज पढ़ाया वो क्लियर है? Yes, sir. ओके, और आशीष आपको क्लियर है? Yes, sir. आदित्य? Yes, sir. ओके, सोनल? Yes, sir. नीतीश? Yes, sir. ओके, ठीक है गाइस, ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। सर, अच्छा, हाँ बोलिए। ऐसा क्वेश्चन सर, कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना सर बनाने के लिए। हाँ मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको भेज दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए, आई विल सेंड टू यू। अच्छा, एक चीज गाइस और पूछनी थी मुझे आपसे कि अभी जो हम क्लासेस इवनिंग में कर रहे हैं, सो अभी किसी का स्कूल ओपन होने वाला है कुछ दिनों में? No, No. sir. नो सर। अभी कुछ ओपन नहीं होना, तो अगर जब तक स्कूल ओपन नहीं होता है सो कुछ दिनों के लिए क्या हम अपनी क्लासेस मॉर्निंग में रख, मॉर्निंग इन द सेंस के अराउंड 11, 12, 1, 2 लाइक दैट, ऐसे रख सकते हैं क्या? 11. Yes, sir. 11, sir. रख सकते हैं मॉर्निंग डे टाइम में? यस Yes, सर। अच्छा ठीक है, बट कल तो क्लास हम इवनिंग में ही करेंगे। एक बार मैं अपना टाइम टेबल शेड्यूल मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ, मैं फ्री हूँ या नहीं उस वक्त, हो सकता है मैं बिजी हूँ, सो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कल की क्लास इवनिंग में ही हमारी रहेगी, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये जो मैंने प्रपोजल दिया है ओनली फॉर जब तक गर्मी है, स्कूल ओपन नहीं हो रहे तभी तक के लिए, ऑलवेज के लिए नहीं है। ऑलवेज हमारा यही टाइम फिक्स रहेगा साल भर, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल इवनिंग क्लास ही है 7:45 पर गाइस, फाइन? Yes, sir. ओके, बाय, Subratri, sir. टेक केयर। Good night, sir. Thank you. Stay connected.